Now let's solve this passage. Which one of the following statement best reflect the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders? क्या एक्शन लेना चाहिए वो बताना है अपने को इसमें, राइट? सो दैट देयर इज ए इक्विटेबल allocation of water to different stakeholders. तो इससे ही हमें पता लग गया that this the theme of this passage is related to water, right? So जो ऑप्शंस होंगे वो डायरेक्टली इसमें गिवन नहीं होंगे, हमें एक्शन बताना है, पैसेज को समझ के क्या एक्शन लेना है, राइट? सो लेट्स रीड द पैसेज. वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट among different state in India over river water. This is correct. हमने ये न्यूज़ में भी काफ़ी पढ़ा है. Of the 20 major river system, 14 are already water stressed. Right? कितनी water stressed है? 14. 75% of the population live in water stressed region. Right? A third of whom live in water scarce area. Climate change, the demand of rising population, right? Climate change, rising population, and the need for agriculture to keep pace, and the increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the Union, except for regulation of interstate river. Key to ensuring balance between competing demand of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent region and state. So देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वहाँ पे हमें सॉल्यूशन ही बताना है, राइट? इक्विटेबल अलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. तो यहाँ पे ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? तो ये हमें हेल्पफुल रहेगा. Allocating fair share of water to them require what is it require assessment based on objective criteria such as specificity of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. while ensuring the climate need of river and aquifers, right? तो ये सारे फैक्टर्स को सोच के, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं ये सारे, उनको सोच के हमें असेसमेंट करना है, राइट? एंड देन हमें अलोकेट करना है वाटर, राइट? सो नाउ व्हाट इज द एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स? फर्स्ट, ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर अलोकेशन शुड बी मेड. हाँ, ये भी सही है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है. सेकंड को देखते हैं. ऑल द रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, राइट? सो दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट. अगर हम विदाउट पैसेज पढ़ के भी करेंगे तब भी इसको कट कर सकते हैं, राइट? एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, एंड दिस इज not feasible, right? This is not practical that we link all the rivers water channel between the region of water surplus and region of water deficit should be created, right? तो ऐसा तो कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, feasible नहीं है इतना, ठीक है. Now D, to mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. तो ये तो it cannot be reduced, right? It will increase, right? So this is also wrong. This is not possible. So a national pragmatic legal policy framework for water allocation should be made. तो हाँ, ये होना चाहिए so that जैसे यहाँ पे मेंशन था, right? ये basin based approach हमें यूज करनी चाहिए, right? तो एक अप्रोच तो हमें चाहिए, फ्रेमवर्क तो चाहिए फॉर वाटर एलोकेशन. तो अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो हमें सही लग रहा है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. So we have to find assumptions. Now let's read the passage. Scientists studied the vernal window, right? So if you don't know the meaning of this, no need. The passage is defining it here itself. The transition period from winter to the growing season, right? So that period is called, that gap is called vernal window. They found that warmer winter with less snow resulted in a longer lag time between the spring event and a more
protected vernal window. This change in the spring timetable has a ecological, social and economic consequence for agriculture, fisheries and tourism. Right. This change in the spring timetable has a इसके consequences होंगे, right? As the ice melt earlier, the bird don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecological event. इसकी वजह से क्या होगा, जो ecological events है, they are getting delayed, right? So what are the assumptions? First assumptions देखते हैं क्या है. The global warming is causing spring to come early and for longer duration. देखो यहाँ पे कहीं पे भी global warming mention नहीं है first of all, right? अब जो spring है, that जो spring is coming early and for longer duration, it can happen due to, as we read in the geography, due to La Nina, right, or El Nino. So those seasonal variation can also be the factors, right? So we cannot assure that global warming is the only reason. So this is wrong. Now second, early spring and longer period of spring is not good for bird population. See here, this is not given, that they have mentioned just bird don't return, but we don't know if they are not returning, so it is affecting their population or not, right? So this we cannot conclude. So this is also wrong. So the answer will be option D. Now let's see this passage. Which one of the following statement best reflect the most logical, rational, crucial message implied, right? Implied by the passage. इसका मतलब है, implied का मतलब है कि it may be not given directly in the passage, right? So we will read directly the passage. A global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of, ये क्या है nitrogen use efficiency? A measure of the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution, right? So this is nitrogen use efficiency. Says that using too much fertilizer will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently the global average of nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, right? तो 40% crop use करता है, 60% waste हो जाती है, right? It remain in the environment. According to the study, more than half of the world population is nourished by food grown with fertilizer, right? So half of the world population क्या use कर रही है, कौन सा फूड यूज कर रही है, जो फर्टिलाइजर के थ्रू ग्रो हो रहा है, कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्रॉप यील्ड. नाइट्रोजन यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी गेट ए हाई क्रॉप यील्ड. प्लांट टेक्स द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो एंड द एक्सेस इज लेफ्ट इन द ग्राउंड. सो एक्सेस कहाँ पे है, ग्राउंड, वाटर एंड एयर्स में. दिस रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ए पोटेंट ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस, and other form of nitrogen pollution including eutrophication of lake and river and contamination of river water, right? तो नाइट्रोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव लेस नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, राइट? नाउ व्हाट इज द मैसेज implied by the passage, right? Message and passage. Okay, now first, an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट. देखो डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोला है उसने, राइट? बट इनडायरेक्टली हमें पता लग रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि इफिशिएंसी कम है, राइट? सो इट शुड बी मोर, राइट? नाउ सेकंड देखते हैं, फर्स्ट को बाद में देखते हैं, ठीक है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. देखो ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, उसने ये जरूर बोला है कि 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या यूज कर रही है, फूड ग्रोन विद फर्टिलाइजर, राइट? तो ऐसा नहीं बोला है कि उसने कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और इट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी. मे बी वी विल फाइंड सम अदर सॉल्यूशन. So this is out of the scope of this passage. Okay. Alternative to crop that require excess nitrogen should be identified and cultivated. ऐसा भी कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, राइट? और यहाँ पे इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है पैसेज में. So this is out of the scope of this passage. Conventional agriculture using synthetic fertilizer should be replaced with agroforestry
राइट। तो ऐसा सब तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब, राइट। सो वी कैन कट दिस ना, ऐसा कोई मीनिंग दे रहा है पैसेज, राइट। उसकी तरफ इंक्लिनेशन भी नहीं कर रहा है कि इसको छोड़ के हमें नए कुछ यूज करना चाहिए, राइट। सो द पैसेज फर्स्ट देखते हैं, एनहांस इफिशिएंसी फॉर द यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इंपेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंट। और ये बात सही है, नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी की बात करता है। अगर उस इफिशिएंसी को हम बढ़ा देते हैं, राइट, तो उससे क्या होगा कि दैट विल बी बेनिफिट for food production and the environment, right? So the answer will be option A. Now let's solve this passage. Which one of the following statement best reflect the most logical, rational, crucial message conveyed by the passage, right? So let's read the passage. Along with sustainable lifestyle, climate justice. So sustainable lifestyle and climate justice is regarded as significant principle in environmental parlance. Both the principle have bearing on political and economic choice of the nation. So far, in our climate change summit or compact, both the principle have eluded consensus among nations, right? See, I have seen most of the people don't know the meaning of this. देखो हिंदी में भी आता है, वहां पे देख सकते हैं, पर कई बार हिंदी से भी समझ नहीं आता है, राइट। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप पैसेज नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। तो नॉर्मली अगर आप देखो इन दोनों चीजों पे ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे, इन अवर क्लाइमेट चेंज समिट और कॉम्पैक्ट बोथ द प्रिंसिपल हैव एल्यूडेड कंसेंसस, मतलब कंसेंसस नहीं बन रहा है अमंग नेशंस। जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस, justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotation. The crucial question in the next few year, आगे कुछ सालों में क्या होगा, the will be how resource, technology and regulation are used to support the victim of climate change. Justice in climate is not confined to action relating to mitigation, but include the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage, right? तो ये पैसेज पढ़ लिया, आप देखते हैं कि क्या मैसेज ये कन्वे कर रहा है, क्या क्या ऑप्शन अपने पास है, राइट। पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहा है, शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एंड एग्रीमेंट। अभी वो बोल रहा है कि अभी करंट टाइम पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है एल्यूडेड कंसेंसस अमंग नेशन, अभी तो कंसेंसस नहीं है, फ्यूचर में होना चाहिए, राइट। तो ये वाला यही बोल रहा है, राइट। तो देखते हैं इसको आगे। एनवायरमेंटल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। ऐसे तो कोई बात नहीं कर रहा है कि एनवायरमेंटल रिसोर्स आर अनइवनली, अगर आप कॉमन सेंस से देखो ये सही लग रहा है, बट इस पैसेज के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये पैसेज में ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देयर इज एन इंपेडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद ए ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम क्लाइमेट रिफ्यूजी, राइट। तो अभी करंटली नहीं है ये इशू, बट इन फ्यूचर हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन भी है, राइट, कि इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, राइट। सो करंटली दिस इज नॉट एन इशू। क्लाइमेट चेंज in all its connotation is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. उनको ज्यादा पे करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो we will cut option D also. अब ऑप्शन ए ही बचा, तो this will be the answer. अब now many people will say, I have seen like many aspirant think कि सर ये आंसर क्यों होगा। देखो क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहा है, ये बोल रहा है should be ingrained in detail. should का मतलब है होना चाहिए, राइट। तो ये पैसेज क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि ये दोनों चीजें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में डील कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है कि इट शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो ये क्लाइमेट जस्टिस जितने भी आगे कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट होंगे उनमें होना चाहिए, ठीक है, उसी के बारे में ये बता रहा है कि ये क्यों होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। Which one of the following statement best reflect the most logical, rational, as I told you at many times, like don't focus on these keywords, right? Best, reflect, most, logical, rational, these are confusing, right? So just focus on the main. What is the main thing here? Main thing is message conveyed by the author of the passage, right? Now we are directly reading the passage. Sourcing food from non-agricultural land such as uncultivated system such as forest, wetland
pastures, etc. in addition to agricultural land enable a systemic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities. What's the benefit of it? For the rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and stay clear of natural disaster and season induced shortfall of agricultural food. राइट तो जो रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसमें जो शॉर्टफॉल रहता है फूड का, इसकी वजह से एट टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर और सीजन इंड्यूस जब रहता है, जब सीजन अच्छा नहीं है, राइट, इस सीजन में जैसे फसल अच्छी नहीं होगी. ओके, सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्री इज ऑफन more resilient. Tree is more resilient to adverse weather condition than annual crop. Forest food often provide a safety net during period of food shortage, right, caused by crop failure. Forest food also make important contribution during seasonal crop production gap, right. तो ये ऊपर ही बोल दिया है कि या तो नेचुरल डिजास्टर होगा या यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या सीजन इंड्यूस, उसी चीज को यहाँ पे दोबारा बोल रहा है, राइट. ये दिस प्रोवाइड सेफ्टी नेट, राइट, कब, या तो क्रॉप फेलियर हो गया या सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन गैप, राइट. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. फूड यील्डिंग ट्री शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड. देखो तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा, ठीक है. सपोज आपने पैसेज नहीं पढ़ा, डायरेक्टली करना चाह रहे हो, तो ये आप दिस थिंग यू कैन डायरेक्टली कट, राइट, क्योंकि ये बोल रहा है कि सारे सिर्फ फूड यील्डिंग ट्रीज आपको लगाने हैं हर जगह और सबको हटा देना है, ऐसा तो देखो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट. नाउ सेकंड, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी एंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उससे हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. ये दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कैन नॉट बी एंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, राइट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ थर्ड, wasteland and degraded area in India should be converted into agroforestry system to help the poor, right. So ये सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा है, वेस्टलैंड की और डिग्रेडेड एरियाज की, ये सबकी बात कर रहा है, राइट. अनकल्टिवेटेड सिस्टम जितने भी हैं, राइट. नाउ ऑप्शन डी पढ़ते हैं. एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ हमें इस पे फोकस करना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे, राइट, और फॉरेस्ट फूड पे, राइट. सो दिस इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी. जो ऑप्शन सी है दैट इज नैरो, राइट, बिकॉज इट इज फोकसिंग ओनली ऑन वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया, राइट. ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन सी. Now let's solve this passage. Which one of the following statement best reflect the most logical and practical message conveyed by the passage, right? तो इसमें हम डायरेक्टली पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ने जाएंगे तो ये भी काफी लेंथी है, तो डायरेक्टली पैसेज ही पढ़ लेते हैं, राइट. While awareness on use, misuse and abuse of antibiotic is a common knowledge, as is the impact of dosing poultry with antibiotic. The environmental impact of antibiotic manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotic factories is fueling the rise of what is happening because of this pollution? Drug resistant infection, right. The occurrence of drug resistant bacteria सराउंडिंग द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज वेल नोन, राइट, क्योंकि वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, राइट. जो एंटीबायोटिक प्लांट्स हैं, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट, सो दैट इज द मेन मैसेज, राइट. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटिंग प्रोटोकॉल इन प्लेस, राइट. अब देखो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि एफ्लुएंट तो उसको बोलते हैं ना, वेस्ट जो आता है, लिक्विड वेस्ट, राइट, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस, तो ये तो बोलना ही चाह रहा है ना. बट और देखते हैं और ऑप्शंस क्या क्या हैं, व्हाट अदर ऑप्शंस वी आर हैविंग. सेकंड, इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल. एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को उससे क्या होगा,
जो वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं कंपनीज जो है, राइट, दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट, तो लोगों में अवेयरनेस करने से क्या होगा, राइट? सो दिस इज नॉट द आंसर. स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विद. उसने ऐसा नहीं बोला है कि इट कैन नॉट बी डन अवे विद, राइट? स्प्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, उसने बोला है कि फैक्ट्रीज के चारों ओर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नॉर्मली वी फाउंड, राइट, एज इट इज इनहेरेंट इन मॉडर्न मेडिकल केयर. ये बोल रहा है ये तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ फोर्थ, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन एंड सिटीज. अगर उनको, पहली बात तो दिस इज नॉट फिजिबल, अगर उनको रूरल एरियाज में भी सेटअप करेंगे तब भी वो ट्रीट नहीं करेंगे कंपनीज, तो वहाँ भी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्यूशन. So the answer should be A. Now why this is the answer? Because it is saying it is necessary to put proper effluent, right? So this is talking about effluent means waste water, liquid waste, right? Treatment protocol in place, right? तो यही बोलना चाह रहा है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो इसका है, जो वेस्ट आ रहा है, right? That should be treated. So the answer will be option A. Now let's solve this passage. अब इस पैसेज में जितना बड़ा पैसेज है उतना ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले बस देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज. सो वी हैव टू फाइंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. बेनिफिट ऑफ द गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, राइट, occur only when student complete and leave school after having acquired the gateway skills. Like one learn to walk before running. Similarly, one pick up advanced skill only after picking the basic foundational skill. The advent of the knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequence. क्या consequence है इसमें, क्या challenge face कर रहा है economy, knowledge economy, right? Of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with global economy. कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ पेस नहीं कर पाएंगे विदाउट ए स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन, राइट, विदाउट ए स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन एट द प्राइमरी लेवल, राइट, और द स्कूल लेवल, देयर कैन बी नो इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट. वो बोल रहा है कि अगर आपको प्राइमरी लेवल पे ही अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है तो लेटर ऑन हायर एजुकेशन में आप में स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी, राइट? अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, टू बिकम ए ग्लोबल पावर. अब देखो ग्लोबल पावर वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है, गेस, राइट? नॉलेज इकोनॉमी मेंशन है, राइट? ग्लोबल इकोनॉमी मेंशन है पर ग्लोबल पावर वर्ड मेंशन नहीं है. टू बिकम ए ग्लोबल पावर, इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, राइट? सो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, राइट? तो इसको देखते हैं अभी, ठीक है, पर इसको रॉन्ग नहीं कर सकते हैं. This can be an answer, right? Now second, India is unable to become a global power because it is not focusing on promoting knowledge economy. ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला है कि knowledge economy को promote नहीं कर रहा है, right? So this is wrong. Now our education system should focus more on imparting skill during higher education. ये आपने देखा हो स्कूल एजुकेशन और प्राइमरी की बात कर रहा है, यहाँ पे ये जस्ट रिवर्स बोल रहा है कि हायर एजुकेशन में होना चाहिए. So this is wrong. Now D, parents of many school children are illiterate and are unaware of the benefit of quality education. पेरेंट्स की कहीं पे बात नहीं हो रही है, उनकी लिटरेसी और इसकी सबकी भी बात नहीं हो रही है. दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ओनली ऑप्शन ए, राइट? इसमें देखो पूरा क्लियर नहीं था कि ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल पावर वगैरह मेंशन हो गया था, जबकि पैसेज में कहीं पे ग्लोबल पावर एज सच मेंशन नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है? तो द आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. Which one of the following statement best reflect the most logical message implied by the above passage? So we have to find the message implied, right? Now let's read the passage. Okay, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ऑप्शंस क्या क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी डिफिकल्ट हो रही है. तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी करोगे तो आपको लगेगा दिस इज रॉन्ग अगर कॉमन सेंस से कर रहे हैं. मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइस. ये सही लग रहा है. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शंस. ये तो गलत है, राइट? इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी ए गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट.
ये भी कॉमन सेंस से सही लग रहा है, तो दो ऑप्शन तो हमारे गलत लग रहे हैं कॉमन सेंस से, राइट। ये वाला गलत लग रहा है और ये वाला भी गलत लग रहा है, ये दोनों सही लग रहे हैं। अब पैसेज पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अब नाउ आपको देखो, ये पैराडॉक्स का मतलब ही नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट को, तो उनको लगता है ये पैसेज अब समझ ही नहीं आएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं पता आप आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदर्स एस। अब यहाँ पे एस लिखा है तो लोगों को एक ही ख्याल आता है, यहाँ पे ये एस का मतलब है गधे को बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कहानी है, ठीक है। जीस बुरिदन द 14th सेंचुरी फिलोसफर रोट अबाउट फ्री विल, राइट। ये फिलोसफर है, राइट, उसकी एक स्टोरी है, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। सो ही रोट अबाउट फ्री विल एंड द इनएबिलिटी टू चूज ड्यू टू, क्यों नहीं चूज कर पा रहा, न्यूमरस चॉइसेस है उसके पास एंड अनसर्टेनिटी। इन द स्टोरी ए डंकी स्टैंड बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग stack of hay, unable to decide which to eat. It starved to death. Changes in technology. Now, अब ये क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, एन इनोवेशन सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट only exacerbate our glut of choice. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and societal media can leave little room for, there is no room, टाइम ही नहीं है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए या रेस्ट के लिए। मेकिंग डिसीजन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, decision making is becoming difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find they are attractive, right, toward these life choices, but they find themselves unhappy and anxious, right. तो अब देखते हैं क्या implied है। पहला implied है modern technology and feeble societal structure and make life difficult। ऐसा कुछ नहीं है, right। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चॉइसेस तो बढ़ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ पूरी डिफिकल्ट हो जा रही है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। सोसाइटल स्ट्रक्चर को पूरा खराब कर रहा है और लाइफ, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ सेकंड, मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस। ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा है, राइट। तो मेन क्या बोलना चाह रहा है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। थर्ड तो हमने पहले कट कर दिया था, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ओपिनियन ऑफ अदर्स, राइट। इन अवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग। अब ये कहाँ से निकल रहा है, बिकॉज ही इज सेइंग लाइफ इज अबाउट चॉइसेस, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली डिफिकल्ट। बट अगर बहुत सारी चॉइसेस है तब भी डिफिकल्ट है, उसके बारे में पूरा पैसेज है ना। और ये पैराडॉक्स से भी यही मीनिंग निकल रहा है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, राइट। जो चॉइस है उसका चॉइस का पैराडॉक्स क्या है, मतलब अगर कम चॉइसेस है तब क्या इशू है, अगर आपके पास ज्यादा चॉइसेस है तब क्या इशूज है। सो दिस पैसेज इज ऑल अबाउट दैट, राइट। So the answer will be option D. Now let's see this passage regarding the financialization of household saving. Which of the following statement best reflect the solution that are implied by the passage, right? So this is implied by the passage. It means वो directly नहीं given होगा, implied है, right? Now the first is flexible environment is needed to develop solution. Second है household need customized solution. Innovation in financial technology are required, right? So this is important actually. ये पूछ रहा है implied है, मतलब it is not directly given, right? Solution is not directly given, right? Implied होगा, right? Now household finance in India is unique. We have a tendency, right? We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Step to encourage the financialization of saving are critical, right? So what they want to encourage the financialization of saving. A populace accustomed to traditional process will not simply jump into financialization. वो directly jump तो नहीं करेंगे into financialization। देखो अगर इनका मीनिंग नहीं पता ना, जैसे मान लो सपोज मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, राइट। हर्डल्स टू चेंज इंक्लूड ऑनरस ब्यूरोक्रेसी, ए स्केप्टिसिज्म ऑफ। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि जो हर्डल्स है उन्हीं का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑथर इज टॉकिंग अबाउट हर्डल्स, दिस थिंग। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है सॉल्यूशन, तो जो हर्डल्स है उन्हीं के जो सॉल्यूशंस होंगे, राइट। जितने भी हर्डल्स हैं उनके सॉल्यूशन होंगे। सो पहला हर्डल्स क्या है, टू चेंज इंक्लूड ब्यूरोक्रेसी, राइट, ऑनरस ब्यूरोक्रेसी, स्केप्टिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, a lack of basic information about which of merit service and provider is best for each family, right? हर फैमिली के लिए कौन सा अच्छा है, right? And how and even if one can make the transition कैसे होगा between them if necessary, right?
तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया था, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखो ब्यूरोक्रेसी दी है, राइट, दिस इज रिजिड ब्यूरोक्रेसी, राइट, तो ये फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सॉल्यूशन, यहाँ पे बोला है बेस्ट फॉर ईच फैमिली, राइट, तो कस्टमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है, राइट, पैसेज में, तो जो उसका सॉल्यूशन हो, और सॉल्यूशन पूछा है क्वेश्चन में, तो अगर ये जो प्रॉब्लम्स है इनको आप सॉल्व कर दोगे, ये जो प्रॉब्लम्स है इनका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ थर्ड, इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है कि हाउ दिस विल हैपन, हाउ दिस ट्रांजिशन विल हैपन, राइट, तो दिस विल बी थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत सारी जगह आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड को ही करेक्ट दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से तीनों सही होंगे, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। अब इस पैसेज में आप देखो जो क्वेश्चन है वो भी काफी लेंदी है, एंड अगर इसमें ये क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे ना डायरेक्टली, राइट, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, तो ये बहुत लेंदी है और ये पैसेज भी लेंदी है, राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पैसेज पढ़ेंगे फर्स्ट, और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि क्या पूछा है, अजम्पशन पूछा है कि मैसेज पूछा है, राइट। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, सब में ये कॉमन ही होगा, क्योंकि हमें जो भी आंसर देना है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज ही देना है मोस्ट ऑफ में, राइट, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता कि आपको आउटसाइड नॉलेज लानी है, राइट। द फॉलोइंग अजम्पशन have been made, so we have to find the assumptions, right? Now pharmaceutical patent, so this passage is talking about pharmaceutical patent, pharmaceutical patent grant protection, right, to the patentee for the duration of the patent term. The patentee enjoy the liberty, it enjoy the patentee क्या enjoy कर रहा है, liberty to determine the price of the medicine which is time limited to the period of monopoly but could be unaffordable to the public. Such patent protection offered to the patentee is believed to benefit, it is believed to benefit the public over the longer term through innovation and research and development, although it comes at a cost in the nature of higher price for the patented medicine. The patent regime and the price protection through a legally validated high price or the medicine during the currency of the patent provide the patentee, it is providing the patentee what, with a legitimate mechanism to get return on the cost incurred in R&D, right। तो ये बात कर रहा है पेटेंट की, वही कॉमन सेंसिकल बात कर रहा है जो हम नॉर्मली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, राइट। ये उनको क्या मिलता है, पेटेंट मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, राइट, 10 और 20 ईयर्स के लिए, उस पीरियड में वो लोग उसके काफी हाई प्राइस रखते हैं, उस वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक है उसको अफोर्ड नहीं कर पाती मेडिसिन को उस टाइम पीरियड पे। बट यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक है उसको लॉन्ग टर्म फायदा होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे गेट, राइट, क्योंकि उसके बाद वो पेटेंट नहीं रहता उसका उस पे, बट यहाँ पे कंपनी को फायदा रहता है कि उस पीरियड में दे गेट ए लेजिटिमेट राइट टू गेट रिटर्न, सो दैट वो उनका जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो दवाई बनाने में, राइट, उसको वो निकाल सके, राइट। नाउ इसमें क्या क्या assumptions है, राइट। नाउ लेट्स रीड फर्स्ट ऑप्शन, पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटी पुट ए ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक्स परचेजिंग पावर इन असेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है ह्यूज बर्डन टू पब्लिक परचेजिंग पावर, पब्लिक की परचेजिंग पावर पे, राइट, तो दिस इज करेक्ट क्योंकि ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ओके, कि यहाँ पे इट बिकम अनअफोर्डेबल, अनअफोर्डेबल है, राइट, सो इट इज पुटिंग ए बर्डन, राइट, इन असेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन, राइट। तो उस पीरियड में लोगों के लिए उसको बाय करना और अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ए ह्यूज बर्डन फॉर द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं दिया है, अदर कंट्रीज की कोई बात नहीं कर रहा है, ना डेवलपिंग की बात कर रहा है, पुअर कंट्रीज की, तो सेकंड इज रॉन्ग, राइट। नाउ थर्ड, अब देखो सेकंड को हमने कट कर दिया, तो जहां जहां पे सेकंड आ रहा है वो ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट, राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट एंड द लास्ट वन डी, राइट। नाउ 4 विल बी करेक्ट, नाउ वी हैव टू चेक ओनली विद 3, राइट, बिकॉज 4 दोनों में आ रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक वी आर यूजिंग, राइट। एक बार 4 को चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, राइट, सो दैट दोनों के राइट हो जाए बैलेंस, राइट, तो दिस इज करेक्ट। नाउ थर्ड को देखते हैं, प्रोवाइडिंग मेडिसिन, अगर आप इसमें देखो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट इज करेक्ट।
और एक बार थर्ड को भी चेक कर लेते हैं. प्रोवाइडिंग मेडिसिन to the public at affordable price is a key goal during the public health policy design in many countries. मैनी कंट्रीज की बात कर रहा है, राइट. ऐसा तो कुछ नहीं हम यहाँ पे पैसेज में दिया है, कंट्रीज के बारे में कोई जिक्र नहीं है, राइट. सो थर्ड इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके. नॉर्मली अगर आप देखो ये अजम्पशन वाले क्वेश्चंस, नॉर्मली स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक इन दिस, राइट. ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दैट यू कैन नॉट आंसर, राइट. नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. Based on the above passage, so we have to focus on the information given in the passage itself, right. The following assumptions, so here they are asking about the assumption are those things जो ऑथर ने सोचा है कि दे आर करेक्ट और उसके बेसिस पे वो पैसेज को लिख रहा है, ठीक है. नाउ फर्स्ट assumption क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट ए राइट. ये सिर्फ राइट नहीं है प्राइवेसी, राइट. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, राइट, बट इट हैज वैल्यू टू द इकोनॉमी एंड इट हैज ए वैल्यू फॉर इकोनॉमी. देयर इज ए फंडामेंटल लिंक. लिंक किसके बीच में है? प्राइवेसी एंड इनोवेशन. ओके. नाउ लेट्स रीड द पैसेज. इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, राइट. सो इट इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमी, दैट इंडिया शुड फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी while keeping personal data of citizen secure and protected. No one will innovate in a surveillance based environment, right. अब ये बोल रहा है कोई भी इनोवेट नहीं करेगा इन ए सर्वेलेंस बेस्ड एनवायरनमेंट और इन ए प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कंप्रोमाइज्ड, राइट. तो अगर आप देखो यहाँ से हमें लिंक मिल गया, सेकंड वाला जो था, देयर इज ए फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, क्योंकि ऑथर खुद बोल रहा है कि नो वन विल इनोवेट इन ए सर्वेलेंस बेस्ड एनवायरनमेंट, राइट. कोई भी इनोवेट नहीं करेगा, राइट. तो प्राइवेसी होगी तभी वो इनोवेट करेंगे. तो सेकंड अजम्पशन वो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो वी कैन से दिस सेकंड इज करेक्ट, राइट. नाउ आगे बढ़ते हैं. द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल हु जनरेट इट, राइट. दे शुड बी अनेबल टू यूज, रेस्ट्रिक्ट एंड मोनेटाइज इट एज दे विश. जिसका डेटा है वो उसको यूज कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या मोनेटाइज कर सकता है. देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन law should enable the right kind of, so it will enable the right kind of innovation, right. One that is user centric and privacy protecting, right. अब फर्स्ट के बारे में देखते हैं. फर्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट ए राइट. तो राइट तो नहीं है, ये तो बिल्कुल इसने सही बोला. इज नॉट जस्ट ए राइट, राइट से ज्यादा है ना. क्या है राइट से ज्यादा? दैट इट हैज ए वैल्यू टू द इकोनॉमी. इकोनॉमी के लिए वैल्यूएबल है क्योंकि तभी वो इनोवेट करेंगे, राइट. और दूसरा यहाँ पे जो यूजर है वो भी इसको मोनेटाइज कर सकता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट फर्स्ट, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके. नाउ लेट्स सॉल्व दिस पैसेज, राइट. सो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट likely reflect as to what the author of the passage intend to say, right. ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर का मैसेज क्या है, राइट. ये ऑल आर सेम थिंग, राइट. यहाँ पे इंटेंट कीवर्ड को यूज किया है, मैसेज को यूज कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. इन कीवर्ड्स की वजह से बहुत ज्यादा मैंने देखा है लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द क्रक्स और द मैसेज और व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से और व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर. ऑल आर सेम एक्चुअली. सो डोंट फोकस मच ऑन दीज वर्ड्स एक्चुअली, राइट. नाउ let's see we can directly solve this question by using the passage or you can read the question also, right. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको पैसेज पढ़ रहा हूँ. In India, while the unemployment rate is frequently used measure of poor performance of the economy, right. तो unemployment को हम क्या यूज कर रहे हैं? as a measure, right, of poor performance of the economy. Under condition of rising school and college enrollment, it paint an inaccurate picture. So this is giving us inaccurate picture. Why? Because there is a rising school and college enrollment. Okay. The reported unemployment rate is dominated by experience of younger Indian who face higher employment challenge. तो ये जो employment rate हम निकाल रहे हैं, this is dominated by, कौन लोग dominate कर रहे हैं? By the experience of younger Indian who face higher employment challenge and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater. This unemployment challenge is greater for the people with secondary or higher education, right. And rising education level, now this is important, rising education level inflate unemployment challenge.
तो अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से बढ़ रहा है, राइजिंग एजुकेशन लेवल की वजह से भी बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज हाई, हाँ दिस इज हाई, बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, ठीक है, सो दिस इज ऑल टुगेदर रॉन्ग। नाउ सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज ए फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन, राइट। ये इसने यहाँ पे बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग एजुकेशन, राइट, एंड द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कहाँ से आ रही है, दैट दे आर, तुम यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, राइट, दे एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू वेट, वो जॉब को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब फॉर देम, राइट, जो एजुकेटेड है ऑलरेडी, राइट, फॉर द राइट जॉब, ये है ना, फॉर द राइट जॉब रेदर देन देयर ओल्डर पेयर्स। ओल्डर पेयर क्या कर रहे थे, वो जो भी जॉब मिल रही थी उसको सेलेक्ट कर रहे थे, बट अभी जो यंग इंडियंस है वो क्या कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट जॉब। तो जब वो वेट कर रहे हैं उस पीरियड, वो पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐड हो रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा शो हो रहा है, राइट। सो वी कैन से दिस इज फॉर द एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी, राइट। अदर ऑप्शंस को भी एक बार देखते हैं, व्हाई दे आर रॉन्ग। देयर आर नो लेबर, राइट, अगर आप देखो ये क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, दे आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो आप इसको डायरेक्टली कट कर दोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, राइट। तो ये तो बोल रहा है कि हमारे इंडिया में कोई भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ही नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कॉमन सेंस से अगर आप पैसेज नहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट आंसर करना चाह रहे हो, तब आपको ये वाला ऑप्शन सही लगेगा, पर हमने पैसेज पढ़ लिया है, सो वी नो दैट यहाँ पे एजुकेशन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। अगर आप यहाँ पे देखो कि दिस पैसेज कि पैसेज भी बड़ा है एंड द क्वेश्चन वो भी अपने आप में बड़ा है, तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पढ़ने जाएंगे सो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल डायरेक्टली रीड द पैसेज, राइट। सो साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफ, राइट, साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफ, तो ये ऑथर बोलना चाह रहा है साइंस अकेले अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू ए गोल, right. It is not possible to run a course right when the goal itself has not been rightly placed, right. What science need is philosophy. This is the opinion of this author. What science need is philosophy and the analysis of scientific method and the coordination of scientific purpose and result. Without this any science must be superficial. Government suffers precisely like science for lack of philosophy, right. So ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट भी इसी तरह सफर करती है जैसे साइंस अगर there is no philosophy. So the important thing is here is philosophy, right. यहाँ पे भी यही लिखा है, right. What science need is philosophy. Philosophy bear to science the same relationship which statesmanship bear to politics. Movement guided by total knowledge and perspective, as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge become scholasticism when divorced from actual need of man and life. अब देखो इसका अगर मतलब नहीं पता है ना तो ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको. Without knowing this also you can answer, right? तो वहां पे हमेशा पैसेज में you will find some word जिसके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, राइट. तो उनसे घबराना नहीं है, राइट. वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, सो जस्ट लीव इट, ओके. And divorce from the actual need of man and life. So the pursuit of politics become a destructive bedlam when divorce from. अब जैसे ये वाला वर्ड है इसका भी मतलब नहीं पता है, बट स्टिल वी कैन मीनिंग निकाल सकते हैं स्टेटमेंट पढ़ के, राइट. When divorce from the science and philosophy, राइट. तो यहाँ पे फोकस कर रहा है फिलोसफी के ऊपर कि साइंस या जो गवर्नमेंट है दे सफर विदाउट philosophy, right. Now which one of the following statement best reflect the most rational. मैंने आपको कई बार बताया इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है. मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल. यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, राइट. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. नाउ फर्स्ट, मॉडर्न स्टेटमेंटशिप नीड टू बी वेल ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड. वो बोला साइंटिफिक मेथड में नहीं, फिलोसफी में होना चाहिए, राइट. बिकॉज गवर्नमेंट भी सफर कर रही है विदाउट फिलोसफी. यहाँ पे ये बोल रहा है कि मॉडर्न जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको ट्रेन होना चाहिए साइंटिफिक मेथड में, तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन कट दिस ऑप्शन राइट नाउ। नाउ ऑप्शन सी पढ़ते हैं, एज द स्टेटमेंट bureaucrat are the product of a society, they are product of society, right? It is desirable to have a system of education in society that focuses on training its citizen in scientific method and philosophical thinking from very early stage, right? So this is wrong. पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, राइट? वो सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में फिलोसफिकल एलिमेंट होना चाहिए, राइट? सो साइंटिफिक एलिमेंट होना चाहिए, नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है पहली बात, सो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, राइट? और स्टेटमेंटशिप में होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे जो सिटीजन है उनको ट्रेनिंग देने लग जाए, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी, राइट? नाउ डी, इट इज डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइंस में ऐसा होना चाहिए दैट फिलोसफी होनी चाहिए, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसफर, राइट? टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड, हमें गोल ओरिएंटेड तो चाहिए, 10 पर्पसफुल एंड यूजफुल टू द सोसाइटी, तो ये ऑल की वजह से यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट? इट इज नॉट डिजायरेबल to have a government managed by empirical statement unless well mixed with other who are grounded in learning and reflect wisdom, right? So wisdom यहाँ पे क्या denote कर रहा है? Philosophy, right? So answer will be option B. Now let's see this question. This is a small passage, right? तो small passage है तो ऐसा लगता है this will be easy, right? तो but small passage are little bit tricky, so you have to focus on their language, right? So now first of all, let's read the question. Based on the above passage, so we have to focus on only on what is given in the passage, right? जितना पैसेज में दिया है उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है, आउटसाइड नॉलेज को we will not bring it here, right? Which one of the following term, we have to find the term best express the ultimate goal of the state. So इस पैसेज के हिसाब से हमें बताना है what is the ultimate goal of state. Now अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं, राइट, और बिना पैसेज पढ़े इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, कम्युनल हार्मनी, लिबर्टी, राइट? तो इसमें वी विल गेट कंफ्यूज्ड इन, आई थिंक इन 2 ऑप्शंस, राइट? अदरवाइज आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, राइट? राइट टू लाइफ, राइट? तो इसमें लिबर्टी आ रहा है, बट यहाँ पे हमें फोकस करना है कि वो जो ऑथर है, हर ऑथर का अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, राइट? तो हमें यहाँ पे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा कि ये जो ऑथर है इसके हिसाब से द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट इज व्हाट, राइट? नाउ लेट्स रीड द पैसेज. द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज not to dominate men, not to restrain them by fear, rather it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to make rational being into brute, beast and machine. It is to enable their bodies and their mind to function safely, right? It is to lead man to live by and to exercise a free reason that they may not waste their strength in hatred, anger and nor act unfairly toward one another, right? So what is the ultimate goal of the state? देखो अगर आप यहाँ पे इनिशियल लाइंस में देखो, यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है, राइट? इनिशियल ये जो लाइन है इसी से हमें आंसर मिल रहा है, राइट? सो द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट इज व्हाट? देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, व्हाट दे डू, दे सर्च द कीवर्ड, दे विल सर्च फॉर द कीवर्ड लाइक पर्सनल सेफ्टी इन दिस पैसेज, दे विल सर्च फॉर द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड इन दिस पैसेज, और अगर उनको मिल जाएगा वो कीवर्ड तो उनको लगेगा यही आंसर है. कम्युनल हार्मनी उनको नहीं मिला इसमें, सो दे विल से दिस इज नॉट द ऑप्शन. लिबर्टी इसमें कहीं नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है, राइट? पर्सनल सेफ्टी की बात कर रहा है, सो दैट विल बी द आंसर, बट द आंसर विल बी लिबर्टी. व्हाई? Option D will be the answer. Why? Because they are talking about free. Everywhere this passage is talking about कि man should be free, right? The state का ultimate goal होना चाहिए कि उसको free करे so that उनकी जो body है and mind है that can function safely, right? So that is the ultimate goal of the state. So the answer will be option D. Okay. Now let's see this passage. So based on the above passage, the following assumption have been made. So we have to find the assumptions. अब देखो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है पैसेज से, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पैसेज ही पढ़ते हैं, राइट? फूड कंजप्शन पैटर्न. सो दिस इज अबाउट फूड कंजप्शन पैटर्न हैव चेंज
substantially in India over the past few decades, right? So it is changing. This has resulted in the disappearance of many nutritious food, right? So what is happening? Disappearance of many nutritious foods such as millet, right? While food grain का जो production है, that is increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition, right? Food grain का production बढ़ा है, लेकिन उसने malnutrition के issue को address नहीं किया है. For long, the agricultural sector is focusing on increasing food production, right? Particularly staple, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crop grains, fruit and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practice can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water and food derived through them, right? तो ये बोलना चाह रहा है पूरे पैसेज में कि क्या हो रहा है कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, राइट? तो अजम्पशन क्या है यहाँ पे, ऑथर क्या क्या अजम्पशन ले रहा है? टू इम्प्लीमेंट द SDG and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practice are inevitable even if they do not address malnutrition. वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो तो बोल रहा है कि इसकी वजह से, मोनोकल्चर की वजह से हमारा जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, राइट? यहाँ पे लिखा है ना, मोनोकल्चर की वजह से कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इट इज अराइजिंग, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, अब देखो फर्स्ट को हमने कट कर दिया है क्योंकि दिस इज बिग वन, तो हमें यहाँ पे एलिमिनेट वाला प्रोसेस को लगाना पड़ेगा कि हम व्हाट आर द ऑप्शंस वी कैन एलिमिनेट. फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट. नाउ द आंसर विल बी फ्रॉम सेकंड एंड B or C, right? So let's read B. Dependence on a few crop has negative consequence for human health and the ecosystem, right? तो ये सही बोल रहा है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप मतलब मोनोकल्चर की बात कर रहा है. तो इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्योंकि पे उसने लैंड डिग्रेड हो रही है उसकी भी बात करी है, ठीक है, डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड. सो दिस इज करेक्ट. अगर सेकंड सही है तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट? फिर भी चलो आपको ये थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो ये भी सही लग रहा है क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर ही रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ द फोर्थ देखते हैं. फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर रेम्युनरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन, देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी. ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया, नहीं तो वो बात करता कि लोग मोनोकल्चर में क्यों जा रहे हैं, राइट? तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना, सब्सिडी की बात है, ठीक है. सो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. Based on the above passage, the following assumption have been made. So we have to find the assumptions. Assumptions are like author ने कुछ चीज कंसीडर करी है, कुछ चीज को वो सच मान रहे हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने ये पैसेज लिखा है, राइट? तो कौन सी चीज है, कौन सा assumption है जिसको वो सही लेके चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये पैसेज लिखा है, ठीक है? तो क्या क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर. Farmer and consumer need to be educated about eco-friendly food. Which of the assumption given above are correct? Right. So I have seen many students what they are doing, like at many places in many videos, many teachers claim that without reading the passage you can solve the question directly. Like you read this thing: organic farming is inherently unsafe for both farmer and consumer. सही है, कॉमन सेंस है, ठीक है, या गलत है? गलत है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अनसेफ नहीं है, सेफ है, right? This is considered normally. Now second, farmer and consumer need to be educated about eco-friendly food, right? तो ये सही है, ठीक है. तो आंसर वो डायरेक्टली टिक कर देंगे, पर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पैसेज भी पढ़ेंगे, ठीक है? इस पैसेज पे 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले में क्रक्स पूछा होगा, ठीक है? तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं पहले. There is a claim that organic farming is inherently safer. See, वहां पे unsafe लिखा था, right? But they are talking about here safer and healthier. The reality is that because the organic farming industry is, so this passage is talking about organic farming. Organic farming industry is still young and not well regulated, right?
In India, farmers and consumer alike are not only confused. So farmer and consumer both are confused about what product are the best for them, but sometimes use product in a way, they are using product in a way that could harm them as well. For example, now they are giving the example, right? Since organic fertilizer are difficult to obtain on a large scale, in India, farmer often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as Dhatura, flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act as it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much, so what are the issues, how much and when to use it are not well researched और regulated issues, right? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ क्या इश्यूज है वो उन्होंने बताया, राइट? सो नाउ अजम्पशंस क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ, so this is wrong. They are saying it's safe actually, right? So this cannot be correct. Farmer and consumer need to be educated about eco-friendly food. So see here, this thing looks similar, eco-friendly food and organic farming, but they are different, right? So this is also wrong. So the answer will be option D, right? Now the second question from the same passage, right? Which one of the following statement best reflect the most logical, rational, practical message? So what is the message conveyed by the author, right? In India, organic farming should not be promoted. ऐसा कहीं नहीं बोला है उसने, it should not be promoted as a substitute for conventional farming, right? So this is altogether wrong, right? Second, there are no safe organic alternative to chemical fertilizer. ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोला है कहीं पे भी. वो बता रहे हैं कि how much and when to use are not well researched, right? Now third, in India, farmer need to be guided and help to make their organic farming sustainable, right? So this is correct, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कंज्यूमर एंड फार्मर दोनों को नहीं पता होता है, राइट? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल. सो दिस लुक्स करेक्ट. पर ऑप्शन डी को भी देखते हैं एक बार. द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज ए स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट. ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है पैसेज में, सो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट? नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. So what we will do, first of all we will read the question. Based on the above passage, the following assumptions, so we have to find the assumptions, right? Assumptions क्या होती है? Assumptions मतलब जो ऑथर ने सही सोच के, ऑथर किसी चीज को, किसी फैक्ट को सच मान रहा है एंड उसके बेसिस पे वो पैसेज को लिख रहा है, ठीक है? So what are the assumptions he is making before writing that content, right? So पहला क्या है इसमें? collection, processing, segregation of municipal waste, right, should be with government agency. Second क्या दिया हुआ है? resource recovery and recycling require technological input that can be best handled by private sector enterprise. अब पैसेज को पढ़ते हैं. In India, the segregation of municipal waste, so this passage is about municipal waste at source is rare, right? Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this, right? Ideally it fit in the chain after segregation between wet waste and the rest, collection, recycling and before getting to the landfill. Which technology, now they are talking about technology, is most appropriate in converting waste to energy depend on what is in the waste. Waste क्या है, right? That is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, right? So two kind के हो गए, biodegradable and non-biodegradable, right? So the biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offer a major solution, right, for processing this. ठीक है, तो इसमें क्या क्या assumption है? First, collection, processing and segregation of municipal waste should be with the government agency. उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है, ना इस बारे में कुछ
ऐसा कहीं पे मेंशन किया है कि इट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट। वो म्युनिसिपल वेस्ट की बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब ये नहीं हो गया कि गवर्नमेंट बॉडी ही उसको हैंडल करेगी, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो है अजम्पशन, ये फर्स्ट है, ये दिस इज रॉन्ग। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, राइट। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। सी, इस पैसेज पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है। So this is the second question, right? Which one of the following statement best reflect the crux? So here we have to focus on the crux of the passage. So this passage is all about what? So ये passage बात कर रहा है म्युनिसिपल वेस्ट की बात कर रहा है, राइट। फिर ये बता रहा है म्युनिसिपल वेस्ट में, ठीक है, कि कहाँ पे इश्यूज आ रहा है म्युनिसिपल वेस्ट में और कितना टाइम सेग्रीगेशन में जा रहा है, ठीक है। सारा बजट किस में जा रहा है और फिर उसके बारे में वेस्ट टू एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो कहाँ पे फिट होती है सेग्रीगेशन में। तो ये पैसेज ओवरऑल किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव, ऐसा तो कहीं पे कॉस्ट की बात नहीं किया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करी है यहाँ पे, ठीक है, बट इनएक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव है, दैट इज नॉट मेंशन्ड एनीवे, राइट। नाउ biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. अब municipal solid waste में उसने पहले ही बोल दिया है that it has 2 component, biodegradable and non biodegradable component, right? So जो biodegradable component है उसके लिए we can use this method, right? But जो non biodegradable है उसके लिए नहीं mention किया गया है, right? And this cannot be crux of the passage, right? बिकॉज ये टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ बता रहा है। सो दिस, इसके चांस कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, राइट। सो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट, एंड उसमें ये भी मेंशन किया गया है दैट सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। सो ये दिस पैसेज, दिस इज द क्रक्स, सो थर्ड कैन बी करेक्ट। नाउ डी देखते हैं, द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडुक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफिशिएंटली इफेक्टिवली, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और हमारे पास बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो कितना है? मोर देन 50%, लिटिल ओवर 50%, राइट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट। यहाँ पे नॉट एडुकेट लिखा है पर यहाँ पे एडुकेट है हमारे पास, और ऐसा यहाँ पे कोई मेंशन भी नहीं है इस चीज का, ठीक है। एंड दिस बायोमेथनेशन, ये यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का है, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ओनली, दे आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल वेस्ट, और उसमें क्या इश्यूज है जिसकी वजह से वेस्ट टू एनर्जी, जो एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी वाला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। सी दिस पैसेज लुक्स स्मॉल, राइट। तो नॉर्मली आई हैव सीन लाइक मैनी स्टूडेंट थिंक दैट जो स्मॉल पैसेजेस होते हैं दे आर इजी वन, राइट, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी वी विल approach in the same way. We will first read the question. So which one of the following statement best reflect the most logical and rational inference? So we have to find the inference that can be drawn from the passage. So options क्या क्या है? They are talking about, first option is the home range of elephant need to be a vast area of rich biodiversity. The elephants are keystone species and they benefit the biodiversity. Rich biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of, देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि एलिफेंट के बिना रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन, है ना। हमने अभी तक पैसेज को नहीं पढ़ा है बट स्टिल वी कैन कट दिस बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट। एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, राइट। नाउ वी विल रीड द पैसेज। Elephant are landscape architect clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, right? So regeneration की बात हो रही है, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals. Elephant eat plant, fruit and seed, propagating the seed when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provide nourishment to plant an animal and act as a breeding ground for insect.
In the time of drought, they access water by digging holes which benefit other wildlife. Right. So this passage is talking about the elephant. Elephant क्या क्या करते हैं, ठीक है, and how they are useful for the biodiversity and other plants and animal. Right. So the first option, home range की बात कर रहे हैं, home range की बात नहीं कर रहे हैं. So first option we can cut. Right. ऐसा कुछ नहीं बोला है ना. Need a vast area of, right. Elephant are the keystone species and they benefit the biodiversity. They benefit the biodiversity and keystone species हो गई because इतना हेल्पफुल है पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है. तो ऑप्शन बी कैन बी द आंसर. पहले एक ऑप्शन डी को देखते हैं. एलिफेंट आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, सो दे आर रीजनरेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनरेशन ऑफ अदर, है ना, विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो दिस एज पर देयर रिक्वायरमेंट नहीं है, जब वो चाह रहे हैं तब नहीं हो रहा है ऐसा, राइट. उनकी इच्छा पे नहीं हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बाय डिफॉल्ट, राइट. उनकी प्रेजेंस से ही हो रहा है. सो इट इज नॉट लाइक एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है. So इस keywords की वजह से this option is not possible. So the answer will be option B. Now let's see this passage. Which of the following statement best reflect the logical inference from the passage given above? Just focus on inference. Don't focus on logical, right? It's just inference. It cannot be illogical inference, right? So we have to focus on the inference, right? Now, what are the options? It is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing, right. फाइनेंसिंग के ऊपर है, गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है फर्म की. द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वो एंश्योर करता है कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात करें. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रॉबस्ट सप्लाई चेन. अब देखते हैं, अब यहाँ से हमें पता लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि दे आर टॉकिंग अबाउट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. सो पैसेज पढ़ते हैं. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इट एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. ए फंडामेंटल रीजन व्हाई corporate governance has moved on to economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital market. Right. Effective corporate governance enhance, right. Effective corporate governance enhance क्या enhance करता है? Access to external financing, right. अगर effective corporate governance है then क्या enhance होता है? आपका access to external financing by firm, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हायर ग्रोथ होगी एंड एम्प्लॉयमेंट. इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड. इन्वेस्टर कहाँ अपना फंड को इन्वेस्ट करते हैं? वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर आर मेट, राइट. तो क्या इन्फ्लुएंस हम निकाल सकते हैं? अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज, राइट. इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मेन चीज नहीं है, राइट. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसकी वजह से आपको गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी, राइट. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ सेकंड, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी. हाँ, ये सही है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, राइट. जिसकी वजह से दे गेट एक्सेस टू, यहाँ पे लिखा है ना, एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. इफेक्टिव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस एक्सेस टू, राइट. सो दिस इज करेक्ट. पर और भी ऑप्शन को चेक करते हैं. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर करता है दैट द फर्म मेंटेन. ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये कोई एंश्योर नहीं कर रहा है, राइट. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन की वजह से भी नहीं है, ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है. ये बोल रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना. देखो यहाँ पे सेकंड, ये देखते हैं पैरा, ये फंडामेंटल रीजन व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा, राइट. इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि रैपिड ग्रोथ इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इसलिए हो गया क्योंकि आप बाहर से फंड उठा सकते हैं, ठीक. और यहाँ पे ये थर्ड जो ऑप्शन है इसमें जस्ट रिवर्स लिखा है ना, कि वो इंश्योर करता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की. इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, राइट. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. क्योंकि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म. उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से क्या होता है? दे आर एबल टू टेक
external financing, right, which will help in their growth and employment, right. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. Now let's see this passage. Which one of the following statement best reflect the most logical and rational implication covered by the passage? See, these words like logical, rational, there are many words suitable, so don't get confused. Like all these words, best, right, logical, rational, don't get confused in this. Okay, just focus on the main thing. Main thing is here the implication conveyed by the passage, right. First option क्या है? Arbitrary curb on vehicle to reduce pollution are difficult to implement, right. Knee jerk reaction cannot solve the problem of pollution, but an evidence based approach will be more effective. ये penalty की बात कर रहा है, ये heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test. In the absence of law to deal with the problem of pollution, the administration tend to make arbitrary decisions, right. Now read the passage. To tackle the, so we got like this passage is talking about the pollution, right. क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, अभी पढ़ते हैं. टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज, राइट, पॉलिसी मेकर थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन जैसे कि टेम्परेरी यूज ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम फॉर व्हीकल, क्लोजिंग स्कूल, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल आर ए वे फॉरवर्ड, राइट. इवन देन, नाउ द ऑथर इज सेइंग इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन. ये सब करने के बाद भी एयर क्लीन नहीं हो रही है, ठीक है. तो ये ड्रास्टिक एक्शन आपने लिए पॉलिसी मेकर्स ने, उसके बाद भी एयर इज नॉट क्लीन. व्हीकल मोर देन 15 years old comprise 1% of the total and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuel and car types arbitrarily is not proper. Diesel engine produce, now they are talking about diesel engine, they are producing more PM 2.5 and less CO2 than the petrol or CNG engine. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrogen oxide, right, then petrol engine, NO oxide, right. No one has measured the amount of NO oxide, right, that CNG engine are emitting, right. Arbitrary ban on vehicle that have passed mandate fitness, right, fitness test and periodic pollution test are unfair. What is needed? Now they are talking about what is needed. नाउ यहाँ पे ऑथर अपनी ओपिनियन बता रहे क्या है उसके हिसाब से. व्हाट इज नीडेड इज द साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस एंड द टेक्नोलॉजी दैट विल वर्क टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम दैट, राइट. So this is the final opinion of the author right here. Now हमें क्या बताना है कि implication बताना है पैसेज का. तो arbitrary curbs on vehicle to reduce pollution are difficult, difficulty की बात नहीं हो रही है, ठीक है. This is wrong. Knee jerk reaction cannot solve the problem of pollution. knee jerk reaction जैसे कि यहाँ पे उसने बात करी है ना, drastic action जो ले रहे हैं, ठीक है. So it will not solve the problem. Evidence based approach will be more effective. तो evidence की जगह यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे कीवर्ड यूज किया उसने scientific, तो scientific and evidence both are same actually, है ना. साइंस भी evidence देगा, प्रूफ देगा, राइट. evidence based भी वही है, so they are same. So this can be the answer. But let's see another option also. ये हैवी पेनल्टी की कोई बात नहीं हुई है कहीं पे भी, ठीक है. तो हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं. नाउ 4, इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्री डिसीजन. ऐसा भी नहीं बोला है उसने, ठीक है. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली. का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नाउ लेट्स सी दिस पैसेज. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज. तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रक्स फाइंड आउट करना है पैसेज का, राइट. सो ऑप्शंस देखते हैं एक बार. द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट ए सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड by creating appropriate genetically modified crops. Using modern food processing technologies, we must fortify our food items with required nutrient elements. Right? अब हम पैसेज को पढ़ते हैं. पैसेज किसके बारे में है? राइट. तो यहाँ से हमें पैसेज का थीम पता नहीं लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के. पर अब पैसेज को पढ़ते हैं. Many people are not eating the right food. Many people, बहुत सारे लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं, राइट. For some, it is simply a decision to stick with food they enjoy, but which is
not too healthy, right? So what they are doing, some लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, they are eating what they enjoy, जो उनको अच्छा लगता है वो खा रहे हैं, healthy खाने पे they are not focusing, right? This is leading to an, इसकी वजह से क्या हो रहा है, increase in non communicable disease. This in turn lead to major burden on the our healthcare system. उसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम पे इफेक्ट आ रहा है, दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल विच कैन अफेक्ट आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट? जो जरूरी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नीडेड फॉर पुअर टू इंप्रूव देयर लाइव्स, राइट? कुछ लोग के बारे में तो यहाँ पे बात हो गई, राइट? फॉर सम, नाउ फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी. कुछ लोग तो उनका मन ही कर रहा है, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द हेल्दी फूड. और जो और लोग हैं, राइट, फॉर अदर्स दे डोंट हैव एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड, right, or they cannot afford, leading to a monotonous diet that do not provide the daily nutrient for them to develop fully. Part of the reason, now they are telling about, the author is talking about one more reason, part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional need. एक और उसने इशू बताया कि they are not eating right food or they are not getting nutrition. Why? Because food system में ही problem है, right? Food chain जो है, food system are not properly responding to nutritional need. Somewhere along the long road from farm to fork there are serious deter taking place, right? अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, जैसे ये वाला है, आप इनको ऐसे मत समझना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यू कैन नॉट सॉल्व इट, राइट? बहुत सारे इसमें ऐसे हो सकते हैं वर्ड्स जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, बट स्टिल यू कैन सॉल्व इट, राइट? वहां पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, राइट? हो सकता है क्वेश्चन जो पूछा है उस वहां पे उससे कुछ रिलेटेड हो ही ना, राइट? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कहीं कोई बात नहीं हुई है, पॉवर्टी एलिवेशन की कहीं कोई बात नहीं हुई है, तो वी कैन डायरेक्टली कट दिस, ठीक है? नाउ सेकंड, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. तो यहाँ न्यूट्रिशन की बात तो कर ही रहा है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन में क्या क्या इश्यूज हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों को, ठीक है? सो दिस कैन बी राइट. पहले थर्ड देखते हैं ऑप्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाई क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ऐसी कोई बात कहीं पे नहीं की गई है, ठीक है? यहाँ पे तो ये इंप्रूव करने की बात कर रहा है, वो तो सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है कि न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा, राइट? नाउ फोर्थ ऑप्शन, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट. ऐसा भी कहीं पे फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है? वी मस्ट प्लेस द फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. हमें क्या करना चाहिए, फूड बेस्ड जो न्यूट्रिशन है उस पर फोकस करना चाहिए, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. Now let's see this passage, right? So first of all we will read the question, right? Which one of the following statement best imply the most rational? So we have to find what assumption that can be made from the passage, right? So now they are talking in this question, they are asking about the assumption that can be made from the passage. कि क्या assumption है? assumptions क्या होती है normally? assumption होती है कि author ने क्या सोच के ये passage को लिखा है, कौन से एक फैक्ट है जिसको वो सही समझ रहा है और उसके बेसिस पे उसने ये पैसेज को लिखा है. अगर अजम्पशन गलत हो जाएगी तो पूरा पैसेज ही गलत हो जाएगा, राइट? तो क्या क्या ऑप्शंस है, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, राइट? हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ environmental problem go on unattended. The loss of traditional lifestyle and the influence of Western value lead to some unhealthy ways of living. Now let's read the passage. Environmental problem causes health problem. Environmental की वजह से health problem हो रही है, right? Substantial changes in lifestyle can reduce environmental और health problem. अगर lifestyle में change करते हैं, अगर हम lifestyle में change करते हैं, तो we can reduce, right? So we can reduce what? Environmental problem or we can say health problem, right? Health problem is happening because of, this is happening because of environmental problem, right? Now आगे बढ़ते हैं. But the idea appears almost impossible to adopt, right? With environmental problem की बात कर रहा है. Individual effort can be perceived as having a negligible effect
and therefore lead to inertia. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में अगर इंडिविजुअल एफर्ट है तो उसका बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, राइट, एंड देन इट लीड टू इनर्शिया, राइट. विद हेल्थ, अब हेल्थ पे क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस. सो इन दिस पैसेज अगर आप देखो वो इंडिविजुअल एफर्ट या इंडिविजुअल चॉइसेस की बात कर रहे हैं, राइट. हेल्थ से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड. इंडिविजुअल choices can make the difference between life and death, right? So it means ke regarding health, individual choices can make a huge impact, right? Difference between life and death, literally. And yet bearing a few, कुछ को छोड़ के there seems to be same collective lethargy towards making their choices, right? कुछ को छोड़ के still there seems क्या दिखाई देता है, collective lethargy towards making their choices, right? अब ऑप्शन से देखते हैं. वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. क्योर और प्रिवेंशन का कहीं पे कोई बात नहीं हुई है. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट. कोई बात नहीं हुई है या ऐसा कोई अजम्पशन नहीं हो सकता जिसको सोच के ये पैसेज लिखा गया है, राइट. इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. गवर्नमेंट के बारे में कोई इशू डिस्कस नहीं किया गया है, राइट, कि गवर्नमेंट को ही सॉल्व करना है, ठीक है. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड. अगर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसने ये तो बोला है कि हम जो इंडिविजुअल है देयर एफर्ट वहाँ पे एनवायरमेंटल अगर इश्यूज है उसमें तो नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है, बट हेल्थ को दे कैन अफेक्ट, राइट. सो हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड, ये तो लिखा है उसने, राइट. इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैन गो ऑन अनअटेंडेड, राइट. तो ये तो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है. तो ये दिस कैन बी करेक्ट. एक बार ऑप्शन डी और देख लेते हैं. लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लीड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, राइट. तो ये लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा है, पर ये क्यों हुआ है, वेस्टर्न वैल्यूज की वजह से हुआ है, राइट. तो ये सब के बारे में बात नहीं कर रहा है पैसेज, राइट. तो ऑप्शन डी वी कैन कट. तो द आंसर विल बी ओनली ऑप्शन सी. ओके, now let's see this passage. So first of all we will read the question. Which one of the following statement best reflect the crucial message conveyed by the author of the passage, right? So what we have to focus, we have to find the crucial message conveyed by the author. So let's see the option. What are the options? Business that cause emission may need to close down or pay pollution in future, right. Second क्या है, only solution, only यहाँ पे आ गया है, right. So this whenever we will see these keyword only, so these are the extreme keywords, so normally these options are wrong, right. So we will cut this option. The only solution is technological development related to the issue of climate change, right. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. विद फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, राइट. नाउ पैसेज को देखते हैं, ठीक है. सी दिस पैसेज लुक्स वेरी स्मॉल, राइट. सो नॉर्मली आई हैव सीन लाइक पीपल थिंक कि जो स्मॉल पैसेज है उसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. बट इट डिपेंड्स, राइट. पैसेज कैसा है, पैसेज स्मॉल पैसेज नॉर्मली ट्रिकी होते हैं, राइट. द एमिशन ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर. सो ये पैसेज इज ऑल अबाउट एमिशन. सो एमिशन ह्यूमन पुट कर रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर. नाउ इफेक्ट, इट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट, right. It now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological changes, so now they are talking about technological changes also, meanwhile could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming, right. तो हो सकता है, ये बोला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुड मेक ए फ्यूचर ट्रांजिशन. इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन हो जाए फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, राइट. ओके. बिजनेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम फेल. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस आल्सो. कौन से बिजनेस फेल हो जाते हैं, who do not hedge against the threat of uncertain outcome, right. They got fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. Now let's see the options. Options first क्या था, business that cause emission may need to close down or pay for pollution in future. ऐसा यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, राइट, कि they have to pay, ऐसा भी नहीं है, और close down की भी बात नहीं है, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन we can cut. Second option we already cut because these are extreme statement. Now third, waiting to deal with carbon emission until technology improves, right, is not a wise strategy, right. तो कार्बन एमिशन
कि जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होती है ना, ये तब तक वेट करना कार्बन एमिशन के लिए इट इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी, ऐसा ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। अगर आप देखो, जब द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस could make they can make a future transition away from fossil fuel, but might not, leaving the world with terrible choice between sharply reducing emission at the huge cost or suffering through the effect of unbated warning, right? So this can be the answer. Fourth option एक बार देखते हैं. The future technological changes is uncertain. हाँ, ये तो mention है, right? New industry business की they are talking about business, right? Should be based on renewable energy sources. इसने ऐसा कहीं पे renewable energy sources के बारे में पूरे पैसेज में कहीं नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है कि बिजनेस को मतलब हेज करना चाहिए अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम, राइट, कि कुछ भी आउटकम आ सकता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, उसके लिए बिजनेस को हमेशा तैयार रहना चाहिए और हेज करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो फेल हो जाता है। दिस पैसेज इज, इसमें ये यहाँ पे मेंशन है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, राइट। सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ऑप्शन डी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिकॉज ये वाला तो डायरेक्टली इसमें पैसेज में मेंशन है, राइट। इट इज नॉट वाइज स्ट्रेटेजी, है ना। तो यही मैसेज हुआ ऑथर का, यही मैसेज दे रहा है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, राइट, जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। इट मे इंप्रूव और इट मे नॉट, राइट। सो इस टाइप का वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, which one of the following statement best reflect the most logical and rational message? So we have to focus on the message. What is the message of this passage conveyed by the author of the passage, right? So first option, adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibility of the government. क्या गवर्नमेंट की responsibility है? Climate change causes a change in the government policy regarding land use pattern in the country. Risk perception of farmer are important for motivating them for taking adaptation decision. Since mitigation is not possible, government should come up with policies for quick response to climate change. Now, let's read the passage. In India, a majority of farmers are marginal and small, less educated and possess low adaptive capability to climate change, perhaps because of credit and other constraint. So, one cannot expect autonomous adaptation to climate change. Right? ये बोल रहा है अभी तक कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं दे आर मार्जिनल एंड स्मॉल हैं, तो उनके पास लो अडेप्टिव कैपेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। उनके पास अडेप्टिव कैपेबिलिटी नहीं है, राइट, ऐसा यू कैन एज्यूम। और यहाँ पे भी बोल रहा है वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडेप्टेशन, के अपने आप अडेप्ट कर लेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, ऐसा भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, इट वुड, अगर ये पॉसिबल भी है तब भी इट वुड नॉट सफिशिएंट टू ऑफसेट द लॉसेस फ्रॉम climate change, right? To deal with this, adaptation to climate change is paramount. Alongside क्या करना है? A fast mitigation response we need, right? तो इसके लिए हमें adaptation तो करना ही है climate change के लिए, उसके साथ साथ हमें mitigation भी करना है। Another solution, दूसरा solutions क्या है? Another solution is to have a planned or policy driven adaptation, right? Which would require the government to come up with policy recommendation. Perception is a necessary prerequisite. This is keyword is important, prerequisite. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. Adaptation के लिए हमें क्या चाहिए? Perception की बात कर रहे हैं, ठीक है। Whether farmer are adapting agriculture practices to climate change depend on whether they perceive it or not. कि किसान इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज को, राइट, तभी तो they will adapt, right, towards their, कि नई नई तरीके से उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। However, this is not always enough for adaptation, right? तो ये प्री रिक्विजिट है बट दिस इज नॉट एनफ, राइट, परसेप्शन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ ए फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। फार्मर्स को ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है विद क्लाइमेट चेंज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पैसेज is all about climate change, so they are talking in this passage about adaptations and the mitigation, ठीक है। अब हमने ऑप्शंस पढ़ लिए थे, अब दोबारा से एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, adaptation to climate change and mitigation response are basically the response, ये responsibility की बात कर ही नहीं रहा है ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा उसने बोला ही नहीं है, उसने बोला है फार्मर भी कर सकते हैं, है ना, या उसने बोला है अनदर सॉल्यूशन यहाँ पे, राइट। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकंड, क्लाइमेट चेंज कॉजेज ए चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉलिसी में चेंज हो रहा है रिगार्डिंग लैंड यूज। लैंड यूज वगैरह का कहीं पे कोई
इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सो दिस ऑल्सो रॉन्ग, राइट। नाउ थर्ड, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट, राइट। उसने भी बोला है रिस्क परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजन, राइट। तो रिस्क परसेप्शन की बात तो वो कर ही रहा है, बिल्कुल। तो ये दिस कैन बी एन आंसर। फोर्थ वाला देखते हैं एक बार। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बोल रहा है मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल गलत है, उसने मिटिगेशन की बात करी है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी थर्ड, राइट, क्योंकि रिस्क परसेप्शन की बात कर ही रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3, ठीक है। तो आपको समझ में आया हाउ वी विल अप्रोच, राइट। नाउ लेट्स सी दिस पैसेज। अब इस पैसेज को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट reflect what is implied by the passage. So we have to find what is implied by the passage. तो पहला ऑप्शन क्या है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन रूरल एरिया, राइट। क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। देखो इसमें कीवर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है, ठीक है, कि उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन of only, if you will see, we can directly eliminate this one. Why? Because here this keyword is given only, right? So these are extreme word, so normally these are not the options. Okay, only skilled worker, so he is talking about that health and nutrition of only skilled worker need specific attention. ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। For rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people, ठीक है, health and nutrition of the people. अब पैसेज पढ़ते हैं। More than half of Indian women, so they are talking about Indian women, right, and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. So they are suffering from anemia. According to the study, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be. As a result thereof, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million वर्क डे टू द कंट्री एनुअली, राइट। तो कॉस्ट बता रहा है, इतना पड़ रहा है, इतने सारे लोग हैं ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। तो ये डेटा अपने को नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पे इसकी जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर, राइट। सो करेंटली दिस इज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, राइट, बट इन द फ्यूचर इट विल बी लॉस्ट पोटेंशियल, राइट। It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 to 3 times worse than their adequately nourished peer, ठीक है। For an economy that will be more dependent on highly skilled worker, this poses a significant challenge, right, and it is one that really should be addressed given Indian demographic outlook, right. So this passage is about what? This passage is talking about कि men and women both are suffering from anemia. उसकी वजह से क्या हो रहा है, they have less productivity, right. फिर उसने यहाँ पे एक फैक्ट बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो वर्ल्ड में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, राइट, एंड इट इज कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डे टू द कंट्री एनुअली, राइट। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट, तो यहाँ पे ये मेल नरिश्ड की बात कर रहा है, राइट। इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 to 3 times वर्स देन देयर, जिनको नरिश्ड है, ठीक है, उससे 2 to 3 times खराब काम करता है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज बिकमिंग मोर डिपेंडेंट अपॉन द हाईली स्किल्ड वर्कर, राइट। सो दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज, राइट, एंड दिस शुड बी एड्रेस, सो नरिशमेंट शुड बी एड्रेस, राइट। तो देखो रूरल एरिया में एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन, एजुकेशन सिस्टम की कहीं पे कोई भी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन वी कैन कट, राइट। थर्ड वाला तो हमने ऑलरेडी कट कर दिया क्योंकि इज टॉकिंग अबाउट ओनली स्किल वर्कर, ठीक है। नाउ सेकंड और फोर्थ में देखते हैं, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा है वो, ये तो बोल रहा है कि स्किल वर्कर की बात कर रहा है, राइट, पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, नरिशमेंट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ फोर्थ देखते हैं, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओके।